آج آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ بڑے کچھ مہینوں سے بڑی سسٹمیٹکلی یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے بڑی پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہلے ہماری ملاقاتیں ایک ایک کر کے بند کرائیں۔ پہلے علیمہ خانم کو چھوڑا کہ جی یہ نہیں جا سکتی، پھر ہم نے احتجاج کیا، پھر ہم رکے، ہم نے کہا نہیں ہم سب اکٹھے جائیں گے، آخر ہم دو گئے، پھر کچھ عرصہ ہم دو میں سے کبھی ایک کبھی دوسرے، پھر انہوں نے کیا کہ جی اب ایک جائیں گے، پھر انہوں نے کہا اب ایک بھی نہیں جائیں گے۔ آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں، آپ دیکھنا وکیلوں کا انہوں نے بند کیا، ان کے پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کا بند کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمیں چاہیے تھا ہم تبھی سے وہاں پہ ایسا دھرنا دیتے کہ ہم کبھی اٹھتے ہی نہ۔ یہ مجرم لوگ ہیں، یہ جرم کرنے والے ہیں۔ ان کی جرت کیسے ہوئی تھی جب یہ عمران خان کو پمز رات کے اندھیرے میں لے کر گئے بغیر فیملی کو بتائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پمز کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ یہ زکام ہوتا ہے تو یہ سرکاری خرچوں پہ باہر کے ملک میں جاتے ہیں، ان کا بچہ بھی پاکستان میں علاج نہیں کراتا۔ پمز ہسپتال انہوں نے کبھی ٹھیک ہی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے وہاں جانا نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان کو لے کر گئے۔ عمران خان وہ واحد پاکستانی ہے جو پاکستان کی پہچان ہے، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ آپ جا کے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، دنیا میں ان کی پہچان نہیں ہے۔ عمران خان کے لیے دنیا میں دعائیں اس لیے کر رہے ہیں، صرف مسلم ممالک نہیں، جو ساری دنیا کے نامی گرامی لوگ ہیں وہ عمران خان کے لیے بول رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی کریڈیبل آدمی پاکستان میں اللہ نے قائد اعظم کے بعد آیا، وہ عمران خان تھے۔ یہ ان کی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کر کچھ نہیں سکیں گے۔ آنکھ کا مسئلہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ویسے میں بڑی دفعہ کہہ چکی ہوں، میں نے کہا ورنہ یہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے نکلیں گے، ان کی آنکھیں بھی نہیں بچیں گی اور ان کی نسلیں بھی نہیں بچیں گی۔ عمران خان کی زندگی کا یہ سوچیں بھی نہ۔ اس وقت اگر انہوں نے اس وقت عمران خان کا نہ سامنے لے کر آئے، ہاسپٹل میں نہ لے کر گئے، آپ سوچیں ان کا خیال ہے ہم آرام سے بیٹھیں گے؟ ہماری جو ہسپتال میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، ان کے پورے خاندان جاتے تھے۔ آپ جیل انتظامیہ سے پوچھے جا کے یہ کیسے جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے۔ یہ پورے خاندان جیلوں کے اندر تھے، دعوتیں کرتے تھے، سپرنٹینڈنٹ ان کا ملازم تھا، اس کے وہاں جا کے یہ دعوتیں ہوتی تھی، دوست ملنے جاتے تھے، فیملی تو دور کی بات دوست بھی جاتے تھے۔ عمران خان کے لیے یہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور جو لگانے والے ہیں یہ سب مجرم ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں۔ ان کے اوپر انشاءاللہ کبھی 26ویں 27ویں ترمیم ختم ہوئی یہ سب عدالتوں میں ہوئیں گے، یہ ان کے اوپر کیسز بنیں گے۔ انہوں نے جو عمران خان کے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ انہوں نے بڑی ترتیب سے آئے ہیں، یہ یہاں تک ایسے نہیں پہنچے۔ اور ہم ان کو جیسے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے لوگوں کو مارنا مسئلہ نہیں ہے۔ 26 نومبر ان کے منہ کو لگا ہوا ہے۔ اگر جوان بچوں کے سروں میں گولیاں لگ سکتی ہیں تو باقی ان کے لیے کوئی اب نہیں مشکل، یہ پھر یہاں پہ بھی آ کے گولی چل سکتی ہے۔ لیکن ہم عمران خان کے لیے جو ہماری جدوجہد تھی وہ بڑی ہلکی تھی، اب جو ہم شروع کریں گے وہ بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں اور ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، پاکستان سے باہر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے، ہم یا پورا ان کا مقابلہ کریں گے، منظم ہو کے آئیں گے۔ اور باہر کے ملکوں میں جو احتجاج ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب ملک سارے یورپ میں امریکہ میں لوگ کھڑے ہیں اور یہ سمجھے بھی نہ، ان کو جلد عمران خان کو سامنے لانا چاہیے، ہمارے سے ملوانا چاہیے اور ان کا ٹھیک علاج جو وہ عمران خان کے مطابق شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے۔ آج تک ان سے پوچھیں یہ کبھی پمز گئے ہیں، یہ الشفا کبھی گئے ہیں؟ یہ کوئی بھی نہیں کبھی گیا۔ عمران خان کو کدھر سے علاج کروا رہے ہیں جن ڈاکٹروں کا نہ ہمیں پتہ نہ ان کو پتہ ہے۔ اس لیے یہ جلد شفا انٹرنیشنل میں آئیں، ان کو داخل کریں، ہم سب کو دکھائیں، ان کے صحیح ٹیسٹ ہوئے، ان کا ڈاکٹر ان کے ساتھ ہوئے، فیملی ان کے ساتھ ہوئے، ورنہ ہم اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے بھی قابو میں نہیں ہوئے گا۔ پھر نہ یہ کہیں کہ جی ملک میں انتشار پھیل گیا۔ اچھا ایک بات، اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان کا علاج ٹھیک ہوا ہے، اگر ان کا خیال ہے کہ آپ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، تو پھر چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ چھپا کیوں رہے ہیں کہ عمران خان تک نہ ڈاکٹر جا سکتا ہے، عمران خان کا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ چھپایا کیوں ہوا ہے عمران خان کو؟ اور اپنا پورا مینوفیکچر کر کے اپنے 2 بندے بھیج دو، اس بیچارے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو چیلنج کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس لیے
या ये छुपा रहे हैं कुछ, और ये अगर नहीं छुपा रहे तो मोहसिन नकवी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैठ के, उनको कहें कि नहीं अगर डर लग रहा आपको इमरान खान से, नहीं आप खौफजदा, इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल में उनको फौरी तौर पे ले जाया जाए, उनके अपने मॉलेज को वहाँ होना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट हैं निगरानी डॉक्टर आसिम यूसुफ करेंगे। अगर चाहते तो हम कि हम दोनों डॉक्टर जाएं, लेकिन ये तो तुम्हारे से 3 दिन से नेगोशिएशन में कर करके इन्होंने ज़ीरो कर दिया। मतलब इनकी हरकतें देखें, झूठे लोग शुरू कहाँ से करके जी कमिटमेंट गारंटियाँ, और उसके बाद करके रिजेक्ट हो रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली और ज़ीरो कर दिया, और फिर ये ड्रामा रचा दिया, ये झूठ बोल रहे हैं और इनको डर लग रहा है इमरान खान से। लेकिन इमरान खान हॉस्पिटल में ये दाखिल करें, और ये हमारा मुतालबा है। और मैं कह रही हूँ कि ये जो जैसे नौरीन न्याज़ी ने कहा, ये जद्दोजहद जो शुरू हुई है, हम इस वक्त, पहले हम बड़े आराम से करते थे, आज आपने कभी हमारा रिएक्शन देख लिया है? हम इस वक्त, हमें कबूल ही नहीं है, इसके आगे चीज़ बढ़ेगी। हम सारे पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं। इस सिर्फ क्या मांग रहे हैं, पहले बताएं मांग क्या रहे हैं? इलाज। हमने कहा है कि उनको रिहा करो, हालांकि उनको तो जेल में होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आप इंसानियत ही दिखा दें और इमरान खान को उसका इलाज फ़ौरन से बिल्कुल डिले के बगैर मिलना चाहिए। एक आपने कहा कि उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो मुतमईन थे, जाहिर उन्होंने दाखिल किया कि सिर्फ आपकी वजह से तालिबान पर मामला हुआ है, और जो डॉक्टर नदीम थे उनका नाम भी सलमान खान साहब ने कहा कि हमने ही दिया। मैडम इसी से जुड़ा आपको एक सेकंड, हाँ बताओ। पीटीआई में शदीद इख्तलाफात की वजह आपको करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैडम अलीमा जो है वो बानी पीटीआई की इलाज के ऊपर जो है वो उसको मुतनाज़ा करार दे रही है और उसमें सियासत। अच्छा, इसका जवाब तो इमरान खान के पैगाम में आपको मिल गया होगा। इमरान खान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ जो मुझे देखा गया कल। दूसरा, उन्होंने कहा है कि मुझे रिसाई दी जाए डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल से, क्योंकि वो मुतमईन नहीं है, वो फिक्रमंद है। उन्होंने कहा है मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं कि ये इस वक्त मेरा इलाज होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने क्या कहा है कि जो मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो मेरे डॉक्टरों तक पहुंचाई जाएं। एक सेकंड, वो पूछ रहे हैं। हाँ, ठहर जाओ। मैडम, कहा जा रहा है कि आपने मना किया पार्टी रहनुमाओं को और डॉक्टर्स को जेल जाने से। अगर ये दुरुस्त है तो एक मिनट, मुझे एक जवाब, बात सुने। बात इमरान खान की सेहत की हो रही है, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आपके ये सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही। आप इमरान खान की फिक्र करें, इमरान खान के बारे में पूछे कि उनकी इस वक्त क्या हालत है। आप ये क्या लोग लगे हुए आप ये बातें कर रहे हैं? हाँ, छोड़ दो जी, ये सियासी गुफ्तगू नहीं यहाँ हो रही, बस कर दे। मत कर, पूछने दो। पिछले 5 दिनों से बानी चेयरमैन की रिहाई सेहत के लिए धरना चल रहा है, पार्लियामेंट हाउस में भी चल रहा है, केपी हाउस में भी चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। धरना उस वक्त किया जाता है जब पार्लियामेंट का टाइम खत्म हो जाता है। इस हवाले से क्या आपका क्या ख्याल है कि असर नहीं हो रहा? आपका ख्याल है बिल्कुल असर हो रहा है। ये जो मुसीबत पड़ी हुई है इनको बिल्कुल असर हो रहा है। अदालतों में जज के पास भागे जा रहे हैं। ये माशाल्लाह अदालतों को जरा मैं आपको बात कर लूँ। एक सेकंड, मैं बात कर रही हूँ, पहले सुना करें। 1 साल हो गया, जज डोगर, इमरान खान की रिहाई हो सकती है आज, कल सुबह को। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई सुबह हो सकती है अगर वो अलकादर केस और तोशा खाना केस सिर्फ सुन ले और बेल दे दे। 15 मिनट के अंदर इमरान खान। और तो जज को किसने रोका हुआ है? ये जब हम अदालत के ऑर्डर लेके जाते हैं, जज डोगर ने जिसने रोका है, जब हम अदालत के 3 रुकनी बेंच के फुल कोर्ट ऑर्डर के साथ अड्याला जेल के बाहर खड़े होते हैं, लॉयर्स खड़े होते हैं, अदालतों के ऑर्डर, पुलिस उसको ऐसे समझती है कि ये
कूड़े की टोकरी, उनका था हमें पुलिस वालों ने कहा, हम इनको मानते ही नहीं है। आज पेशावर में SHO हाँ, और आज पेशावर के अंदर 1 मिनट के अंदर ऑर्डर आ गया इसी धरने से, जिनसे आप कह रहे हैं कि ये घबरा नहीं रहे कि लोग क्यों सड़कों पे ना आए। हमारा मुल्क है, हमारी सड़कें हैं, पाकिस्तान है ये हमारा, ये यहाँ सबका जमहूरी हक है, हमें आईन ने इजाज़त दी हुई है। ये कौन होते हैं जो सारे कानून तोड़ चुके हैं? आज इन्होंने एक बंदे ने कानून तोड़ा है, इनकी जायदादें सारी बाहर हैं, इन्होंने तो जहाज़ों में उठ के चले जाना, आप उनके लिए क्यों यहाँ पे खड़े होके सुप्रीम कोर्ट का झंडे उठा रहे हो? 1 सेकेंड, आप लोग मेरी बात सुने, आप लोग जो अंदर से कई हैं, मैं उनको जानती हूँ, बड़े अच्छे हमारे बच्चे भी हैं, और मुझे पता है कि उनके ऊपर मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन याद रखें आप यहाँ खड़े रह जाएंगे, उन्होंने पहला जहाज पकड़ के बाहर मुल्क के चले जाना, क्योंकि जो सारी दौलत यहाँ की लूटी हुई इनकी बाहर है। जी टिक्का भाई अच्छा एक सेकंड, टिक्का भाई के बाद एक सेकंड जारी रहेंगे, क्या आपकी इंस्ट्रक्शन है? मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर लोग निकल आते हैं, हम खुश हैं कि हमें सपोर्ट मिल रही है और इमरान खान के लिए खड़े हैं, हमें हौसला मिलता है कि इमरान खान का इलाज इस प्रेशर से ही हो गया, हम तो खड़े हैं। याद रखें, जब तक हम इन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक पाकिस्तानी कौम इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी। प्रोटेस्ट क्या होती है दुनिया में? सारी दुनिया में प्रोटेस्ट हर जमहूरी मुल्क में होती है, और उसका मकसद क्या होता है? आप अपना, जब आपका कोई सुनाई ना हो तो सड़कों पे निकलते हैं ताकि आप प्रेशर डालें, ताकि अपने मुतालबे मनवाएं। हमारा मुतालबा इमरान खान का इलाज है, और जितने लोग इमीडिएटली, और जितने लोग सुनने दें, मुझे बात ख़त्म करने दें, जितने लोग बाहर निकलेंगे और प्रेशर बनाएंगे इनके ऊपर, इतना प्रेशर बनाएं कि इमरान खान अस्पताल में लेकर जाए। डिमांड हमारी यही है, और इस शिफा इंटरनेशनल में बस। अली अमीन गन्नापुर ने कल टॉक शो में बात की कि जितनी रहाई की कोशिश मोहसिन नकवी ने की है, किसी ने नहीं की, इवन कि उन्होंने फील्ड मार्शल से बात की। मैं बात कर लूँगी, ठहर जाओ, साथ नहीं बोल रहे सारे, मैं बात कर लूँगी, आप मेरी बात सुने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, हमारा मकसद बड़ा क्लियर है। आप लोग, मैं सारी मीडिया को हैंडल कर लूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आप सबको जानती हूँ। चुप 1 सेकेंड, मैं आपको सिर्फ सवाल, आपको मैं ये बताती हूँ, आप जितनी मर्जी साइड पे ये देखें, एजेंसियों का काम होता है यही काम करना, या आप लोगों को भेज देते हैं जी जल्दी शैतानियों की बात करो, और आप इमरान खान का, आपके दिल में दर्द नहीं आ रहा? इमरान खान तकलीफ में, आपको किसी को दर्द आ रहा है? आपको इंसानियत के तौर पे दर्द आ रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि ये आपकी दुनिया में आपकी इज्जत है इसके साथ? आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं कि हमें शर्म आती है कि ये हमारे पाकिस्तान में हम ये रह गए हैं कि इतनी बड़ी हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान का इलाज होना है, और आपने इसको इस चीज़ पे ले आए हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ा बने, अपने अखलाकियात ऊपर लेकर जाएं, इंसानियत की तरफ आएं। जब हम इंसान बनेंगे तो फिर हम सारा कुछ ठीक कर लेंगे। 1 सेकेंड, चुप करो, अभी इतना बताया, बस कर, चुप करो ना सारे, पीछे से सवाल सुनने दो उसका। हाँ, इमरान खान साहब का अस्पताल का मुंतकिल का मुतालबा फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ स्टाफ से या किसी और से है? और साथ साथ क्या इमरान खान साहब को मुस्तकिल आंदा होने के लिए क्या कोई खतरनाक चीज दिया है, और दिया किसने आपके ख्याल में? हमें क्या पता है, क्या तब से हम कह रहे हैं हमें अस्पताल में ले जाना चाहिए उनको, ताकि उनकी पूरा डायग्नोसिस हो सके। किससे? गवर्नमेंट से, जिनके पास ताकत है, गवर्नमेंट है, जो भी है, मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर है, जितने भी हैं ये बैठे हुए ऊपर। आप इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं ना, ये चलेगी नहीं बात, ये बात चलेगी नहीं। अब हम खड़े होंगे, सारा पाकिस्तान खड़ा होगा, आप खड़े होंगे साथ, आप इमरान खान का ये इलाज करवाएंगे इंशाल्लाह। और आज नहीं, एक मिनट, आज हमने यहाँ सबको बता दिया है कि अब हमारी जिद्दोजहद सड़कों पे है। इमरान खान के लिए सब निकलेंगे, और अब आप लोगों ने भी निकलना है, आप सब ने इमरान खान के लिए।
शुक्रिया, थैंक यू। दे दो